गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था प्रपोजिशंस पे। प्रपोजिशंस के डेफिनेशंस की थी, सेंटेंस की डेफिनेशंस की थी, बेसिक ऑपरेशंस किए थे, जॉइन, मीट, इम्प्लीकेशंस, इफ़ एंड ओनली इफ, नेगेशन, ये सारे ऑपरेशंस किए थे। कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। आज हम स्टडी करेंगे एल्जेब्रा ऑफ प्रपोजिशंस कि प्रपोजिशन जो है उसकी हम एल्जेब्रा मतलब कि उसके ऑपरेटर्स, एल्जेब्रा जिसे हम सिंपली कहते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जिस दी एल्जेब्रा। सो इस तरीके से हम कुछ रूल्स हैं जिनकी हम प्रपोजिशंस में स्टडी करेंगे, जिनको हम एल्जेब्रा कहेंगे। सो नंबर फर्स्ट, डबल नेगेटिव लॉ। सो डबल नेगेटिव लॉ मीन्स कि कल हमने नेगेशन किया था, तो नेगेशन में हमने कहा था कि पी का नेगेशन क्या होगा, हम नेगेशन ऑफ पी होगा। तो नेगेशन ऑफ पी दैट मीन्स दी डुअल, लुक लाइक ए डुअल। सो डबल नेगेटिव लॉ का मतलब पी विच इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी, कि नेगेटिव पी का भी नेगेटिव ही वो इक्वल टू पी आ जाएगा। सो हम अगर इसकी ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करें तो ट्रुथ टेबल पी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट ऑफ पी ट्रू फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू, नेगेशन ऑफ पी ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स इज ट्रू, नेगेशन ऑफ पी फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स। सो कॉलम 1 and column 3 are equal, so therefore p equal to this one. This is equal to equivalent logical operator. Equivalent logic, equivalent means कि कोई भी दो स्टेटमेंट हैं वो अगर इक्वल है तो उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ मीन्स कि P जॉइन P इक्वल टू P और P मीट P इक्वल टू P। इसकी हम अगर ट्रूथ टेबल बनाएं, सो P ट्रू, क्योंकि सेम स्टेटमेंट से सेम स्टेटमेंट का जॉइन हो रहा है। सो P इज ट्रू फॉल्स, P जॉइन P दैट मीन्स ट्रू इक्वल टू ट्रू। जॉइन रिजल्ट ट्रू कब देगा, जब दोनों ही ट्रू होंगे। सो ट्रू इज ट्रू, फॉल्स इज फॉल्स। अब इसका हमने मीट के लिए भी हम सेम टेबल बनाए, P मीट P, कि ट्रू इज ट्रू, फॉल्स इज फॉल्स। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इक्वल, सॉरी, column 1 and column 2 are equal, column 1 and column 3 are equal. So this one is called the idempotent law. Contraposition law कि P implication Q equal to negation of Q implication negation of P. So that means there are two statements, so true, false, Q is true, false. So negation of P, true, false, false, true. Negation of Q, so Q is true, so negation of Q is false. Here false is true, here true is false, here false is true. So P implication is Q, so that means implication true, false, result become false. So true, false, result become false, and rest of true. Negation Q implication negation of P. So negation of P here true, false, result will false, rest is true. So state column 5 and column 6 are equal. So these two statements are logically logically equivalent. Absorption law, P equal to P join P meet Q equal to P meet P join Q. So truth table, there are two statements P Q, so true, false, true, false.
So P meet Q, two results is true then true. Here P true false is false, false true is false, false false is false. So P join Q, that means either P is true, either Q is true, either P true or Q true, then result will true or both. So true true true, true false is true, false true is true, false false is false. Here P join, so true true is true, true false is true, false false is false, false false is false. Here P meet P join Q, so this means true true is true, true true is true, false false, false true is false, false false is false. So statement P1 column 1 column 5 column 6 are equal. Commutative law, P join Q equal to Q join P, P meet Q equal to Q meet P. So do yourself, सेम टेबल ही बनानी है और उसी के अकॉर्डिंग जॉइन और मीट के ऑपरेशन हमें फाइंड आउट करने हैं. एसोसिएटिव लॉ कि P join Q join R equal to P join Q join R. So this one is the same table, ट्रूथ टेबल, जैसे कि हमने अभी तक बनाते आए हैं. 3 स्टेटमेंट ले लिए और 3 स्टेटमेंट पे हमने ये टेबल कर ली. नेक्स्ट डी मॉर्गन लॉ इज विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. नेगेशन ऑफ P join Q equal to negation of P meet negation of Q, negation of P meet Q equal to negation of P join negation of Q. So truth table, true true false false, true false true false, negation फाइंड आउट कर लिया. फिर देन P join Q फाइंड आउट किया. P join Q में दोनों में से दोनों ट्रू हो स्टेटमेंट या एक ट्रू हो तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स. फिर हमने उसका नेगेशन निकाल लिया. ऐसे नेगेशन ऑफ P मीट नेगेशन ऑफ Q फाइंड आउट किया. हमने ये चेक किया कि कॉलम 6 and 7 are equal, so this will be true. Proof. Logical equivalence. Two proposition P and Q are said to be equivalent if their truth table are identical. जैसे अभी हम अभी तक बताते हैं कि लॉजिकल इक्वलेंस मीन्स कि कोई भी दो स्टेटमेंट इक्वल कब होंगे, अगर उनकी ट्रुथ वैल्यू के कॉलम रेस्पेक्टिव कॉलम जो हैं वो अगर इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वो लॉजिकली इक्वलेंट हैं. और उनको हम इस टू स्टेटमेंट को हम इस तरीके से या ए इक्वलेंट टू बी और इक्वल साइन इम्प्लीकेशन दिस इम्प्लीकेशन बल साइन. नेक्स्ट टोटोलॉजी विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ए टोटोलॉजी इज ए प्रोपोजिशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट. इन दैट मीन्स clearly in truth table all entry in column of tautology are of T only. मतलब टोटोलॉजी अगर हम प्रूव करनी है तो उसके कॉलम के अंदर जो भी स्टेटमेंट है, कंक्लूजन जो भी रिजल्ट है, वो सारे के सारे ट्रू वैल्यू जो हैं वो ट्रूथ ही है. तो वो जो स्टेटमेंट होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, वो क्या होगा, टोटोलॉजी होगा. जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि P और नेगेशन ऑफ P का हमने लिया तो P जॉइन नेगेशन ऑफ P देगा TT. So that means this one statement is tautology. सेम कॉन्ट्राडिक्शन, अगर यही स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाए दोनों तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा जिसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस वन इज द P मीट नेगेशन ऑफ P इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. दिस वन इज फॉल्स फॉल्स. सो दैट द कंपाउंड स्टेटमेंट दिस वन इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. इसका मतलब अगर हम इसका जो कॉलम आएगा, रेस्पेक्टिव कॉलम होगा, उसमें सारे के सारे जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो सारी की सारी अगर फॉल्स होंगी तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा. सो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमने ये देखा P Q लिया, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q, फिर P जॉइन Q निकाला, नेगेशन ऑफ P मीट Q निकाला. फिर उसके बाद में हमने ये किया तो इससे सारे के सारे फॉल्स आ रहे हैं. जैसे हम जो ऑपरेटर्स की जो डेफिनेशंस थी उसको हेल्प से, तो ये प्रूफ हो गया कि ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा.
सो दैट द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी। तो हमें अगर इसको टोटोलॉजी प्रूफ करना है तो इसका मतलब इसका जो स्टेटमेंट के रेस्पेक्टिव में जो कॉलम होगा सारे ट्रू होने चाहिए, जैसे कि ये टेबल बता रखी है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस वन हमें ये प्रूफ करने हैं कि दिस वन इज ए टोटोलॉजी होगा। ये हमें इकोलॉजिकली इक्वलेंट प्रूफ करना है, इम्प्लीकेशन साइन। दिस वन, दिस मीन्स नेगेशन ऑफ क्यू, इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी, इम्प्लीकेशन पी, इम्प्लीकेशन क्यू, ये ब्रैकेट नहीं है। दिस वन इज ये आल्सो प्रूव टू लॉजिकल इक्वलेंट। ओके, सो इनको प्रैक्टिस करें।